Hello kids, this is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. And in this video, we are going to start with the section C of our book English channel of our second unit, which is environment. And here we are with yet another amazing story, which is Tippity the Flying Squirrel. This is actually an extract, and this is an extract from the Companions Feathered, Furred and Scaled. So this is actually a total story, like एक जो है narrative writing है ये, जिसको लिखा है किसने? चार्ल्स एच डोनाल्ड ने. तो इन्होंने ये लिखा हुआ है, तो उसका एक एक्सट्रैक्ट लिया है. एक्सट्रैक्ट मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. ठीक है. सो लेट्स सी or let's know about our author. So Charles S. Donald was a well-known naturalist. मतलब he used to study a lot about the nature. In Companions Feathered, Furred and Scaled, ये जिससे इन्होंने extract से मतलब जिससे ये extract लिया है, published in 1920, he describes the various wild pets acquired by him and his wife during their jungle camping trips. So वो एक नेचुरलिस्ट थे, उनके पास बहुत अलग अलग तरीके बहुत सारे जो है पेट्स उन्होंने अपने पास रखे थे. और यहाँ जो इस चैप्टर में जो हम रीड करने वाले हैं, वहाँ हम जानेंगे कि उनके पास 3 पेट्स थे. एक स्क्विरल थी, एक और 2 डॉग्स थे. इसके अलावा भी उनके काफ़ी सारे वाइल्ड पेट्स थे. सो ये जो पूरी जो उनकी स्टोरी है, जो उनका जो एक पूरा जो नरेटिव राइटिंग है, विच इज़ कंपेनियंस फेदर्ड, फोर्ड एंड स्केल्ड. कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, फेदर्ड मतलब पंख वाले, फर्ड मतलब फर वाले, और स्केल्ड मतलब जिनमें स्केल्स होते हैं, जैसे कि स्नेक में स्केल्स होते हैं. एंड दिस वाज पब्लिश इन 1920. उसमें उन्होंने क्या बताया है? उसमें उन्होंने बताया है अपने जितने भी वाइल्ड पेट्स थे, उनके बारे में बताया, जिनको उन्होंने और उनकी वाइफ ने अपने साथ रखा था ड्यूरिंग देयर डिफरेंट जंगल कैंपिंग ट्रिप्स. तो जब भी वो जंगल कैंपिंग के लिए जाते थे तो अलग अलग पेट्स उनके पास होते थे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी. टू नो टिपिटी was to love her, and I had known her for very long. Tippity, I must tell you, was not a naughty little girl with a penchant for climbing up cotton poles, but a little rodent, commonly called a flying squirrel, the large red flying squirrel, and must on no account be mistaken for the flying fox, which has nothing to do with Tippity's family. Now here, the author is talking about his pet, which is a flying squirrel, and the name of the squirrel is Tippity. To know Tippity, here it has to be double P. To know Tippity was to love her. मतलब टिपिटी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि उसको जो है मतलब टू नो हर वॉज टू लव हर. अगर आप उसको जानोगे तो यू विल गेट टू लव हर. एंड आई हैड नोन हर फॉर वेरी लॉन्ग. इसका मतलब मैं उसे बहुत टाइम से जानता था, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करता था. टिपिटी, आई मस्ट टेल यू, टिपिटी के बारे में मेरे को आपको ये बताना ही चाहिए. इट वॉज नॉट अ लिटिल गर्ल. टिपिटी कोई छोटी सी बच्ची नहीं थी. With a penchant. Penchant का मतलब क्या होता है? Strong liking for something. टिपिटी कोई छोटी बच्ची नहीं थी जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था to climb up the certain poles, curtain poles के ऊपर चढ़ना उसे अच्छा लगता था. मैं कोई छोटी बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ, but a little rodent. Rodents क्या होते हैं? Rodent एक कैटेगरी होती है. तो जितने भी आपके snakes होते हैं, mouse और आपके mouse, rats, ये सब rodent की कैटेगरी में आते हैं. तो इसी कैटेगरी में है हमारी squirrel, commonly called a flying squirrel, the large red flying squirrel. And the squirrel here that he's talking about is literally big. वो एक बहुत ही बड़ी red color की एक flying squirrel है, जिसको on no account you should say that oh it looks like a fox or is it a fox. On no account be mistaken for the flying fox. वो कोई flying fox नहीं है, but it is since it is huge, people might think कि अरे ये कोई fox तो नहीं है. Which has nothing to do with Tippity's family. और fox और Tippity family का कोई भी लेना देना नहीं है. She was brought to me when only a few days old and grew into a splendid specimen in all the glory of a wonderful chestnut red coat and 2 feet of bushy tail.
शी वॉज बॉट टू मी। सो टिपिटी जो एक फ्लाइंग स्क्विरल है वो ऑथर को कब मिली थी, कब आई थी वो उसके पास? व्हेन इट वॉज ओनली अ फ्यू डेज ओल्ड, जब वो बहुत ही छोटी थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब सिर्फ कुछ दिनों जितनी बड़ी थी। एंड ग्रेव इनटू अ स्प्लेंडेड स्पेसिमेन, और आज जब वो बड़ी हो गई है तो इट हैज ग्रोन इनटू अ स्प्लेंडेड स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब क्या होता है? एक एनिमल। फाइनली इट्स अ फुल ग्रोन स्क्विरल in all the glory of a wonderful chestnut red coat. In all the glory, glory का मतलब क्या होता है? Beauty. So in all her beauty, now that it has totally grown, fully वो grow हो चुकी है, so now it looks beautiful with her red chestnut red coat. Chestnut क्या होता है? This color is chestnut. ठीक है? तो this is like जो एक ईंट का कलर होता है, दैट इज नोन एज अ चेस्टनट रेड कोट, एंड 2 feet ऑफ बुशी टेल। और अब जो उसकी जो टेल है वो ऑलमोस्ट 2 feet जितनी बड़ी हो चुकी है। She knew she was fascinating even at a very early age. उसे पता था कि वो fascinating है, मतलब बहुत ज़्यादा interesting है, even at a very early age, जब वो बहुत छोटी थी। And nothing delighted her more than to show off her lovely tail. और जैसे हर किसी के लिए होता है आपको अपनी बॉडी में या आपको अपने बारे में कोई एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है और आप उसको शो ऑफ करते हो। कुछ लोगों को अपने आईज अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अपनी हाइट अच्छी लगती है, कुछ लोगों को अपने हेयर अच्छे लगते हैं। तो अब जो टिपिटी है उसको अपनी टेल बहुत अच्छी लगती थी। सो शी ऑलवेज यूज्ड टू शो ऑफ हर टेल। She knew she was fascinating even at a very early age. So and nothing delighted her more than to show off her lovely tail. Her one drawback as a pet was that she was nocturnal, and so was most lively when it was time for ordinary people to be in bed. वो जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, सब उसमें बहुत अच्छा था, लेकिन एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? उसका एक माइनस पॉइंट था, एक नेगेटिव पॉइंट था। क्या था? कि ये जो थी ये एक नॉक्टर्नल एनिमल थी। नॉक्टर्नल एनिमल्स क्या होते हैं? नॉक्टर्नल क्रिएचर्स वो होते हैं जो लोग दिन भर सोते हैं और रात में जागते हैं, जैसे कि बैट्स हुए। ठीक है, बैट्स जो होते हैं वो भी नॉक्टर्नल्स होते हैं। ओके, सो नॉक्टर्नल क्या होता है? एक्टिव एट नाइट, जो कि रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिन भर मस्त सोते रहते हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम। वो सबसे ज्यादा लाइवली, फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ एनर्जी कब होती थी? व्हेन एवरीबडी वाज देयर इन बेड, मतलब रात के टाइम पे। She lived in a little box with 2 partitions. The inner one, her bedroom, was fitted with a little nest of feathers and cotton wool. अब वो एक little box में रहती थी। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स था जो उसका घर था, और उस बॉक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्टीशंस। ठीक है, लाइक इट हैड 2 पार्टीशन। एक जो होता था द इनर वन, तो जैसे ये अगर एक बॉक्स है तो इसमें जो अंदर वाला था वो उसका बेडरूम था। अब इस बेडरूम में उसके सोने के लिए क्या रखा था? इट वॉज फिटेड विद अ लिटिल नेस्ट ऑफ फेदर्स। उसमें फेदर्स का एक छोटा सा नेस्ट बनाया था, सो दैट शी इज वेरी कंफर्टेबल। फेदर्स और कॉटन वूल। सो अब आपके पास इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? अंदर वाला जो रूम था, जो उसका बेडरूम था, उसमें there was a nest which was made up of feathers and cotton wool and a tiny door, और उसमें एक छोटा सा डोर भी बनाया था उसने। तो suppose this is the box, ठीक है, suppose this is the box and this is the partition. So इस partition में यहाँ पे एक छोटा सा डोर था, so that she can go from one room to the second room and go and sleep there. And a tiny door led from it into the bigger sitting room. So जो उसका सोने वाला रूम था, उसके अलावा जो next partition था, that was the sitting room where she also dined, जहाँ पे वो खाना भी खाती थी। The door of a sitting room being usually open, उसका जो डोर होता था सिटिंग रूम का वो यूजुअली खुला होता था। टिपिटी would announce the fact that she was awake. तो जब वो सो के उठती थी तो वो अपना जो है वो अनाउंस करती थी कि जैसे मैं जाग गई हूँ। कैसे? By giving a low growl and issuing from there in a succession of long and not very graceful jumps. तो जैसे वो सो के उठती थी, she used to produce a sound, a low growl. Growl क्या होता है? Make a low or harsh rumbling sound. तो she used to produce a sound जिसका मतलब होता था okay, I am up,
आई एम अवेक। और उसके बाद वहां से जो है शी यूज टू डू अ लॉट ऑफ जंप्स, जो कि बिल्कुल ग्रेसफुल नहीं होते थे, मतलब इधर उधर शी यूज टू जंप। She would make her way to the nearest table। अब वो जंप कैसे करती थी? She would make her way to the nearest table। अपने सबसे पास वाले टेबल पे जंप करती थी। And there indulge in a tremendous stretch। So first of all she used to jump on the nearest table, and then if you have ever seen, then she used to stretch, मतलब टोटल जो आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हो, अंगड़ाई लेते हो, ट्रिमेंडस स्ट्रेच मतलब फुल बॉडी स्ट्रेच करती थी वो, एक्सटेंडिंग हर 4 legs टू द फुल इन फ्रंट। अब आपके जो लेग्स होते हैं, तो जैसे कि ये 4 लेग्स होते हैं, तो जो फ्रंट के 2 होते हैं इन्हें 4 लेग्स कहते हैं, और पीछे के लेग्स को हिंड लेग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंड लेग्स, ठीक है। तो जो इसके 4 लेग्स होते थे, इसको फुल ऑन वो सामने की तरफ स्ट्रेच कर देती थी, एंड हर हिंड लेग्स एज फार एज दे कुड गो बिहाइंड हर। सो अपने हैंड्स जो आगे के जो 2 लेग्स थे उसको आगे की तरफ, पीछे के लेग्स को पीछे की तरफ फुल ऑन स्ट्रेच करती थी वो। Her head would first rest on the right forefoot। So पहले जो उसका सर होता था वो अपने right forefoot के पास रखती थी, and then on the left। Her tail making circles in the air in the meantime। तो जब ये पूरी बॉडी उसकी स्ट्रेच हो रही है तब वो अपनी टेल से क्या करती थी? It used to form circles। Okay, after her stretch would come her toilet, about which she was most particular। तो पूरा स्ट्रेच बॉडी करने के बाद then it was her toilet time। Tippity would sit erect and carefully get to work with both her little hands। She was very particular about her toilet time। So whenever she used to feel that she has to attend the natural call, so she would just sit erect, मतलब एकदम सीधे बैठ के she would get to work, she will start being with both her little hands on work, beginning with the tip of her nose। मतलब once she was done with her toilet, she would clean itself। कैसे? सबसे पहले she will clean the tip of its nose। She would gradually work over the whole of her face and head। So she would clean the tip of her nose, then her entire face and head। The tail would be her last but by no means her least care। So once she has cleaned her entire body, then at last she would clean her entire tail। But of course it is very important, it doesn't mean कि वो उसको थोड़ा भी कम importance दे रही थी। Her toilet finished, Tippity would have a look around, take one jump off the table and race up the nearest curtains to the pole above। The moment she was done with this entire activity of toilet, तो she would just look around, कौन है कौन नहीं है, and then she would jump off the table। तो टेबल से जंप करके जो सबसे पास में जो कर्टन है उस पे जंप करके she would go up the pole। There she would sit, her tail coiled around her neck, and those great big black eyes of hers looking solemnly down, and sooner or later she would leap right across the room onto my shoulder। So there she would sit। वो जो पोल पे कर्टन से ऊपर जाती है वो पोल पे जाके she would sit there, और उसकी जो पूरी जो टेल है उसको वो कॉइल कर लेगी, मतलब राउंड राउंड घुमा के अपने पास रख लेगी अराउंड हर नेक एंड। तो वो उसको जो टेल है उसको पूरी अपनी नेक के अराउंड रोल कर लेती है। एंड शी हैड बिग ब्लैक आईज, और उन आईज से वो क्या देख रही है? लुकिंग सोलमली। सोलमली मतलब इन अ सीरियस मैनर, बहुत ही सीरियसली क्या देख रही है वो? डाउन, नीचे देख रही है। एंड सूनर और लेटर, और जैसे ही देन शी विल फाइंड मी, शी वुड लीप राइट अक्रॉस द रूम। तो वो रूम से पूरा जंप करके वेयर वुड शी लैंड? ऑन टू माई शोल्डर। सो जो हमारे ऑथर हैं डोनाल्ड सर, तो उनके ऊपर जाके वो जंप कर जाती थी। Dawn, a field spaniel, and Brock, a large shaggy Tibetan sheepdog, were Tippity's best friends। Now the author had 2 other pets, Dawn, who was a field spaniel। So this is Dawn, who is a field spaniel, and then there is Brock, who is a large shaggy Tibetan sheepdog। So यहाँ पे this is Brock, okay, this is a Tibetan sheepdog, so it is very furry। तो ये 2 dogs थे जो कि
टिपिटी के बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। ब्रॉक्स great bushy tail afforded Tippity's much amusement as well as shelter in time of danger. अब जो ब्रॉक था उसकी जो इतनी जो बुशी टेल थी, इफ यू कैन सी दिस इज सो बुशी, सो इसकी टेल बहुत ही ज़्यादा बुशी थी। वो क्या करती थी, वो टिपिटी को बहुत ज़्यादा अम्यूज करती थी। अम्यूज का मतलब क्या होता है, एंटरटेन करती थी, वो उसके साथ खेलती रहती थी। ऑल्सो शेल्टर मिलता था उसको, सपोज शी फाउंड दैट देयर इज सम काइंड ऑफ डेंजर, तो वो उसमें जाके छुप जाती थी। फॉर टिपिटी न्यू फ्रेंड फ्रॉम फो, क्योंकि टिपिटी को फ्रेंड और एनिमी, फो का मतलब क्या होता है, एनिमी, फ्रेंड और एनिमी डिफरेंस पता था, उसको पता था हु कैन हार्म हर, and the approach of a stranger was the signal for her to make use of Brock's tail as a hiding place. और जब भी कोई stranger आता था जिससे टिपिटी को डर लगता था, she would go right to Brock's tail and hide herself there. Her behavior was not always that of a well brought up young lady, and truth obliges me to admit that during meals it was advisable to keep her tied at one end of the table. Now what is the author saying? Author क्या बोल रहा है, उसका जो behavior था वो ऑलवेज बहुत ही ज़्यादा वेल ब्रॉट अप, एकदम यंग लेडी जैसा नहीं होता था। एंड ट्रुथ ऑब्लाइजेस मी, और ट्रुथ जो है वो ऑब्लाइज कर रहा है, इसका मतलब इट डिमांड्स टू टेल यू दैट ड्यूरिंग मील्स, जब हम लोग खाना खाते थे, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू टाई हर, उसको टाई होके रखना पड़ता था, उसको जो है टाई करके एक टेबल के पास रखना पड़ता था। क्यों रखना पड़ता था? आई हैव ऑलरेडी सेड दैट शी हैड अ लवली टेल, ठीक है, उसकी टेल बहुत अच्छी थी, बट इट्स ब्यूटी वॉज समटाइम्स मार्ड, मतलब उसकी ब्यूटी कभी कभी खराब हो जाती थी, डैमेज हो जाती थी। मार्ड मीन्स डैमेज हो जाना। आफ्टर पासिंग थ्रू द सूप, एंड सो वॉज द टेस्ट ऑफ द सूप। नाउ द ऑथर इज सेइंग इट इन अ वेरी फनी वे दैट टिपिटी को कभी कभी बांध के क्यों रखना पड़ता था, स्पेशली मील टाइम्स में, क्योंकि जब वो लोग सूप पीते थे एंड टिपिटी यूज्ड टू जंप, तो क्या होता था, कभी कभी उसकी जो टेल होती थी वो सूप में चली जाती थी, एंड उसकी टेल की ब्यूटी भी मार्ड हो जाती थी, मतलब डैमेज हो जाती थी, और सूप का टेस्ट भी खराब हो जाता था। बेसिकली टिपिटी वॉज नेवर एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो बहुत जंप करती थी, तो वो चीज़ें बिखेर देती थी। Her own dinner consisted of milk and occasionally custard. उसके डिनर में टिपिटी क्या खाती थी? मिल्क एंड कस्टर्ड, sometimes custard. Puddings she loved as much as any school boy, किसी भी स्कूल गोइंग बॉय जितना पसंद था उसको पुडिंग्स। And stewed fruit kept her happy all evening. और अगर उसको स्टीव्ड फूड मिल जाते थे, स्टीव्ड मतलब क्या होता है, जो स्टीम्ड होते हैं ना, cooked slowly in liquid in a closed dish or pan, तो stewed मतलब जो almost steamed होते हैं, very like soft, वैसे वाले जो fruits होते थे, अगर आप उसको दे दो तो she would have been happy all evening. The hardest hill walnut was child's play to her sharp teeth. उसके teeth इतने sharp थे कि जो hardest hill walnuts होते हैं, hill walnuts जो होते हैं अखरोट, walnut मतलब होता है अखरोट, तो ये जो hill के जो walnuts होते हैं वो बहुत hard होते हैं, लेकिन वो भी उसके लिए child's play था, मतलब it was a piece of cake, it was very easy for her to crack it. It took her about 10 minutes to make a hole in the nut. तो उसको सिर्फ 10 मिनट्स लगते थे, वो नट में एक होल करती थी, एंड देन हर लॉन्ग टीथ एंड टंग वुड सून फेच आउट मोस्ट ऑफ द कर्नल। तो उसमें वो होल करती थी, उसके बाद जो उसके लॉन्ग टीथ थे, स्क्विरल के टीथ कितने लॉन्ग होते हैं, और उसकी जो टंग थी वो उसके अंदर का जो पूरा कर्नल, कर्नल मतलब क्या होता है, द इनर पार्ट ऑफ अ सीड, तो जैसे उसके अंदर जो अखरोट के जो प्रॉपर जो हम खाते हैं उसको वो निकाल के शी यूज्ड टू ईट। Tipity was the means of my solving a problem in natural history regarding which a controversy raged for many months. अब टिपिटी ने ऑथर को, ऑथर क्या थे, वो एक नेचुरलिस्ट थे, ठीक है, तो उनको हेल्प किया एक कंट्रोवर्सी को क्लियर करने में। अब नेचुरल एक प्रॉब्लम थी, नेचुरल हिस्ट्री में देयर वाज अ प्रॉब्लम, मतलब देयर वाज अ कंट्रोवर्सी। एक कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, एक डिस्कशन जिसमें ना बहुत ज़्यादा हीटेड डिस्कशन हो जाता है, ठीक है, एक डिसएग्रीमेंट था। सो कंट्रोवर्सी मतलब एक डिसएग्रीमेंट था, जिस डिसएग्रीमेंट के कारण जो है लोगों के अंदर गुस्सा आ गया था। कंट्रोवर्सी रेज्ड फॉर मेनी मंथ्स। अब वो क्या था,
द हिमालयन नट क्रैकर, अब हिमालयन नट क्रैकर जिसका नाम न्यूसिफेगा हेमिस्पिला भी था, had been credited with the holes one frequently found in walnuts in the Himalayas. अब हिमालयास में जो वॉलनट्स मिलते हैं उसमें होल्स होते थे, तो मैक्सिमम टाइम से भी लोग जाते थे, वॉलनट्स में जो होल्स होते थे, तो ये होल्स किसने क्रिएट किए हैं उस चीज को फाइंड आउट करना था। और वो लोग किसको ब्लेम कर रहे थे? हिमालयन नट क्रैकर को ब्लेम कर रहे थे। I tested the truth of the assertion by placing walnuts under a tree where a pair of nutcrackers used to come. अब उसने क्या किया? Nutcrackers, like these are birds, okay? So I tested the truth of the assertion. Assertion का मतलब क्या होता है? A declaration or statement usually without support or proof. अब वो लोग किसे ब्लेम कर रहे थे? हिमालयन नटक्रैकर्स को, which are birds. उन बर्ड्स को वो लोग ब्लेम कर रहे थे। तो इसने इस चीज को प्रूव करने के लिए दैट आप जो है हिमालयन नटक्रैकर्स को विदाउट एनी प्रूफ ब्लेम कर रहे हो, इस चीज को प्रूव करने के लिए ही डिड समथिंग। व्हाट डिड ही डू? उन्होंने क्या किया? ही टुक सम वॉलनट्स अंडर अ ट्री वेयर अ पेयर ऑफ नटक्रैकर यूज्ड टू कम। तो उन्होंने कुछ वॉलनट्स लिए और उसको एक पेड़ के नीचे रख दिए जहां पे जो नटक्रैकर्स आते थे। The birds turned over the nuts but did not attempt to break them. जो birds थे वो आए, उन्होंने उसको टर्न भी किया, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको क्रैक करने के लिए। After this, a few nuts were collected in which Tipiti had already made holes and placed under the same tree and carefully watched. इसके बाद ऑथर ने क्या किया? टिपिटी जो था वो वॉलनट्स में जो है होल कर देता था, ठीक है? तो वो जिन नट्स में उसने ऑलरेडी होल किया था उन नट्स को लेके जाके वापस उसी जगह पे रख दिया। नाउ व्हाट हैपेंड? In due course, the birds came along and at once selected the bored walnuts and began packing at them and working their beaks inside the holes. Now, अब उन्हें क्या पता चला? जो स्क्विरल्स ने वॉलनट्स में होल कर दिए थे, क्योंकि बर्ड्स तो उसको तोड़ ही नहीं पाए, तो जिसमें ऑलरेडी होल हो चुका था, नाउ दे स्टार्टेड पिकिंग, और अपनी बीक को उसके अंदर डाल के उसका अंदर जो कर्नल है उसको वो निकालने लग गए थे। विच मेंट वॉट? दैट इट वॉज नॉट द हिमालयन नट क्रैकर्स जिन्होंने वो पूरा मेस क्रिएट किया था या जो होल्स करे थे, दीज वर स्क्विरल्स। Flying squirrels are said to lap their drink, but Tipiti was much too ladylike to make any such fuss over her milk. अब फ्लाइंग स्क्विरल्स के बारे में ये कहा जाता है दे लैप देयर ड्रिंक। लैप का मतलब होता है जैसे कि एक डॉग या कोई कैट किस तरीके से ड्रिंक करती है, उसको लैप करना कहते हैं। टेक अप विथ क्विक मूवमेंट्स ऑफ द टंग, टंग की क्विक मूवमेंट से जो आप पीते हो उसको बोलते हैं लैप करना। तो फ्लाइंग स्क्विरल्स बेसिकली अपने किसी भी ड्रिंक को लैप करते हैं, बट जो टिपिटी थी वो much too ladylike to make any such fuss over her milk. लेकिन वो बहुत ladylike थी। Now this is again a sarcastic comment. Okay, understand कि टिपिटी जो थी इतना फस नहीं करती थी अपने मिल्क के ऊपर। What she used to do? She was usually in rather a hurry for it. उसको हमेशा बहुत ज़्यादा जल्दी होती थी to drink her milk, and consequently more of her face went into the saucer than was intended by nature. तो actually it was just supposed to be her lips and the tongue which should be inside the milk, but टिपिटी को इतनी जल्दी होती थी कि entire face she used to get her inside the milk, with the result that a certain amount of liquid went up her nose and made टिपिटी sneeze and splutter. और उससे क्या होता था? जब वो पूरा अपना फेस ही उसके अंदर डाल देती थी तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क, थोड़ा सा मिल्क उसकी नोज में चला जाता था, एंड शी यूज्ड टू स्नीज एंड स्प्लटर। स्नीज मतलब छींकना और स्प्लटर का मतलब होता है मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट एक्सप्लोसिव स्पिटिंग और चोकिंग साउंड्स, कि एकदम जैसे आपको चोक हो रहे हो, जैसे कि आपके गले में कुछ अटक गया है। शी यूज्ड टू मेक साउंड्स लाइक दैट। Sometimes several attempts were made before she really settled down to have a good drink. Now sometimes उसको बहुत ज़्यादा attempts लेने पड़ते थे to make her settle down, before a good drink, to have a good drink, but when she did, she got her lips well into the milk and no attempt was made to lap. So पहले तो वो बहुत अच्छे से ट्राई करती थी that she would drink well, she would drink well, she would drink well, but the moment she used to drink, उसके बाद it was not ladylike, then her entire face was into it and she will drink the same way.
She frequently accompanied me and the dogs on an afternoon stroll after being ruthlessly pulled out of her box. Now, she frequently accompanied me and the dogs. तो वो मुझे और dogs को accompany करती थी, मतलब वो हमारे साथ आती थी. कहाँ? For the afternoon stroll, मतलब दिन में ये लोग टहलने जाते थे. Stroll मतलब टहलने जाना. So दिन में वो लोग टहलने जाते थे, तो she used to come after being ruthlessly pulled out of her box. What does this tell you? Ruthlessly का मतलब क्या होता है? Without pity or compassion, किसी पे बिल्कुल दया दिखाए बिना उसको खींच के लेके जाना. Which meant that she was not at all interested in going out for the work. लेकिन author जो है उसको खींच के लेके जाता था. For the first 100 yards or so, she was perfectly happy jumping along behind. So when they used to start their walk, तो जो first 100 words मतलब first 100 yards मतलब थोड़ी दूर तक तो she would jump and she would be very happy and she'll go along with them. But then a flying squirrel's nocturnal mode of progression when on the ground is a succession of jumps. Now अब वो बता रहा है how would she walk? She would not walk like this. जो एक फ्लाइंग स्क्विरल का नेचुरल मोड होता है आगे बढ़ने का, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट या आगे बढ़ने का, चलने का. वो कैसा होता है? व्हेन नॉट ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे नहीं होती है तब वो जंप करती है. So if like she has to go from the table to the curtains to another table to the bed, तो वो jump करेगी. फ्लाइंग स्क्विरल हमेशा jump करती है. Not the graceful little hop of the striped squirrel. अब जो स्क्विरल होती है वो बहुत ग्रेसफुली, जो छोटी स्क्विरल होती है विच यू सी, आप ट्रीज के आसपास देख सकते हो, जो स्ट्राइप्ड होती है जिसमें ऊपर जैसे निशान होता है, वो बहुत ही ग्रेसफुली हॉप करती है. बट रादर अ लंबरिंग गैलॉप with all 4 feet in the air at the same time and the tail held straight up in the air. लेकिन जो flying squirrel है, it doesn't jump like that. वो एकदम ऐसे जो घोड़े की तरह, गैलप कौन करता है? घोड़ा करता है. गैलप का मतलब क्या होता है? Very fast running by a person or an animal. तो यहाँ पे लंबरिंग मतलब क्या हुआ? मूविंग स्लोली एंड क्लम्सीली. तो वो जो है एकदम क्लम्बलिंग मतलब कभी जो एकदम अनस्टेडीली, बहुत क्लम्सीली गैलॉप करती थी, जिसमें उसके चारों पैर हवा में हो जाते थे. एंड व्हेन it was jumping, when she was jumping, तो उसके चारों पैर हवा में और टेल उसकी एकदम स्ट्रेट अप. The last 4 inches or so curling over. और जब वो नीचे last 4 inches, जब वो नीचे बस जमीन में आने वाली होती थी, तब she used to curl over her tail. This not being adapted for long distances, Tippity would soon overshoot her endurance and come to a halt. लेकिन ये long distances के लिए नहीं था. If like you are walking, you are going on a stroll, तो वो नहीं करती थी ऐसा jump करके जाना. This not being adapted मतलब ये इस चीज को नहीं करती थी for long distances. Tippity would soon overshoot her endurance. Overshoot का मतलब क्या होता है? To go beyond, मतलब वो थक जाती थी. Endurance का मतलब क्या होता है? The capacity to keep doing something painful. So suppose you know आप endure कर रहे हो, आपने एक बहुत heavy सी चीज पकड़ी है, तो आप endure कर रहे हो उस pain को. After some time you will just leave it. So this entire walking and jumping, so she used to endure, but soon she will just overshoot. मतलब she will just stop walking and come to a halt and she will just stop. If I were near, अगर मैं पास में होता था, she would make for my leg and be up on my shoulder in the twinkling of an eye. तो जैसे ही वो थक गई तो वो क्या करती थी? देखती थी कौन पास में है. So if the author was near her, so she would just go on from his legs to his shoulder and she would sit there within the twinkling of an eye, मतलब बहुत ही fast. Or if Brock or Dawn happened to be at horn, she should spring on to one of their backs and get a free ride. लेकिन अगर Dawn और Brock, ये जो दो dogs हैं, अगर वो आसपास होते थे तो she would directly just jump on their back और उसको free ride मिल जाती थी वहाँ पे. An oak or the deodar tree invariably attracted her attention and she would make her way to the extreme end of the branch and nibble off the young leaves. अगर आसपास में कोई deodar tree है,
ओक ट्री है या डियोडर ट्री है, मतलब जो एकदम ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज होते हैं, अगर उसको वो मिल गए, सो दैट वुड लिटरली इनवेरिएबली अट्रैक्टेड हर। इनवेरिएबली का क्या मतलब होता है? विदाउट फेल, इट वुड डेफिनेटली अट्रैक्ट हर एंड शी वुड क्विकली जंप एंड गो टू द हाईएस्ट पीक, और वहां पे जाके एक्सट्रीम एंड पे जाके, वहां पे उस ब्रांच में जाके वो जो यंग लीव्स होती है, मतलब एकदम नई नई जो लीव्स जो उगी होती हैं, उसको जाके निबल करती है। निबल का मतलब क्या होता है? टेक स्मॉल बाइट्स, तो छोटा छोटा बाइट करके शी यूज्ड टू ईट। द पॉइंट ऑफ द स्टेम which grew out of the branch appealed to her most, and she would pick off leaf after leaf, just nibbling the juicy end of it and throw the rest away. Now the point of the stem which grew out of the branch, मतलब अगर ये एक जो है मोटी सी टहनी है, तो इसमें से जो एकदम नई सॉफ्ट ब्रांच निकलती थी, that was literally exciting for her. She would pick off leaf after leaf, वो सबसे ज्यादा उसको, क्योंकि एकदम सॉफ्ट होता है वो, so she would go there और एक जो leaf after leaf she will take, और जैसे ये लीफ होता है, ठीक है, so she will nibble the juicy end of it, तो वो जो juicy end होता है लीफ का, she would nibble that, और बाकी की वो फेंक देती थी। However, she was quite happy on any tree or shrub and found something to eat on all. लेकिन she was not fussy, मतलब मुझे तो ऐसी ही लीफ चाहिए या ऐसी ही ट्री के लीफ चाहिए, she was not at all fussy about it. However, she was quite happy. She was happy कि वो किसी भी ट्री में, किसी भी shrub में जाके वो उसकी लीव्स खा के आ जाती थी। She was never hungry. As I have already said, Tipiti was nocturnal and woke up a little after sunset. It left to herself. Provided she did not get a good dinner, she would be prepared to play and look about for odds and ends to nibble on all night through. So, as I have already said, Tipiti was nocturnal. Tipiti कैसी थी? रात में जागने वाली थी, nocturnal थी, and woke up a little after sunset. तो वो कब सो के कब उठती थी? लिटिल आफ्टर सनसेट, मतलब सनसेट के होने के तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद वो सो के उठ जाती थी। सनसेट इफ लेफ्ट टू हरसेल्फ, तो अगर उसको छोड़ दिया आपने तो बस सनसेट के थोड़ी देर बाद वो उठ जाती थी। सनसेट मतलब शाम के टाइम पे। प्रोवाइडेड शी डिड नॉट गेट अ गुड डिनर, अब ये कब होता था? अगर उसको एक अच्छा डिनर नहीं मिला, मतलब सपोज अगर आपको उसको, जैसा भी हम आगे पढ़ेंगे, उसे कैसा डिनर देने से वो अच्छे से सोती रहती थी। अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? प्रोवाइडेड इफ शी वाज नॉट गिवन अ गुड डिनर शी वुड बी प्रिपेयर्ड टू प्ले एंड लुक, तो वो रात भर अब क्या है, शी विल प्ले विद सम ऑफ द अदर थिंग, एंड उसके लिए जो होते थे बहुत अलग अलग चीजें रख देते थे, एकदम ऑड चीजें, सो दैट शी कैन निबल ऑन देम रात भर। I very soon discovered that a good feed just before I went to bed had the effect of making her sleepy too. मतलब now the author had discovered कि इसको सुलाने का there is a way. So just before the author would go to bed, अगर टिपिटी को एक अच्छे तरीके से आपने खाना खिला दिया, if she was good fed, like if that was a good feed, मतलब उसको अच्छे से पेट भर के अगर आपने खाना खिला दिया, so she would not wake up. टिपिटी वुड इनवेरिएबली ओवर ईट, तो क्या होगा? जब टेस्टी खाना आ गया तो टिपिटी जो है ज्यादा खा लेगी, एंड दैट मेंट स्लीपिंग सॉलिडली टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। इसका मतलब उसने जहां ज्यादा खा लिया, शी वुड स्लीप टिल द अर्ली आवर्स इन द मॉर्निंग, विच मीन्स पूरी रात ऑथर कैन स्लीप पीसफुली। अब वो क्या खाती थी? She very seldom woke me during the night, बहुत ही कम वो मुझे रात में उठाती थी। As a rule, I would wake up to find a warm, soft, furry ball curled up against my neck. अब क्या होता था? वो रात में मुझे उठाती थी नहीं, लेकिन एक चीज तो पक्का थी, when I used to get up, तो वो मेरे पास जो आके सो जाती थी रात में, and he would wake up. क्या? To find what? To find a warm, soft, furry ball curled up against my neck. तो सुबह जब वो उठता था तो जो एक फरी सा जो उसका जो टेल होता था वो उसकी नेक के अराउंड कॉइल कर देती थी, और वो वहां पे वो भी सो रही होती थी। बट ओकेजनली द अवेकनिंग वुड बी मच रूडर, एंड आई वुड फाइंड टिपिटी हैविंग अ लवली गेम विद माई टोज, माई ईयर्स और माई हेयर। बट कभी कभी क्या होता था, इफ टिपिटी इज नॉट स्लीपी एंड इफ टिपिटी वॉज अवेक, तो वो क्या करती थी? शी विल, लाइक यू नो, व्हेन द ऑथर विल गेट अप, शी वुड be either nibbling his toes, मतलब वो उसके टोज को के साथ खेल रही होती थी, या उसके ईयर्स के साथ खेल रही होती थी, या उसके हेयर के साथ खेल रही होती थी।
There was something extraordinary fascinating about her every movement and her little chirp of pleasure was very sweet to hear. तो उसके बारे में there was something interesting, there was something extraordinary fascinating about her. कुछ अलग ही बात थी उसमें, उसके हर मूवमेंट में, उसके जब वो बहुत खुश होती थी तो जो वो आवाज़ निकालती थी उसमें, and it was very sweet to hear. Tippity had an assortment of calls. Her growl was most alarming and would have done credit to an animal 10 times her size. अब टिपिटी जो थी वो अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती थी. Assortment मतलब क्या होता है? टोटल वैरायटी, मिक्सचर. तो बहुत अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालती थी वो, और उसका जो ग्राउल होता था, मतलब वो जब चिल्लाती थी, इट वॉज सो अलार्मिंग कि उससे 10 टाइम्स जो बड़े जानवर होते हैं वो उसको भी मात दे देती थी. शी हैड अ टेम्पर ऑफ हर ओन. अब उसको भी गुस्सा आता था. टेम्पर मतलब क्या होता है? गुस्सा. सो उसका एक अलग ही टेम्पर होता था. आई एम सॉरी टू से which every member of the household, master and dogs included, had occasion to remember. तो टिपिटी को खुद गुस्सा आता था, और now the author is saying and I'm sorry to say, लेकिन घर का एक एक member and even the dogs, they have encountered that. सब उसका गुस्सा झेल चुके हैं. It showed for a second and was gone again as suddenly as it had been roused. उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता था. इट शोड फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड का उसको गुस्सा आता था एंड तुरंत वो चला जाता था. जितनी जल्दी वो ऊपर जाता था, राउस्ड मतलब जितनी जल्दी ऊपर जाता था उसका गुस्सा, उतनी जल्दी नीचे चला जाता था. बट वो एक सेकेंड का जो गुस्सा होता था, उस एक सेकेंड में, इन दैट इंस्टेंट, हर शार्प क्लाउज हैड टर्न सम ऑफेंडिंग हैंड और हर टेरिबल टीथ हैड सेंट अ डॉग हाउलिंग आउट ऑफ द रूम. लेकिन उसको जो थोड़ी सी देर का गुस्सा आता था, उसमें उसके जो शार्प क्लॉज होते थे, उन्होंने क्या किया? टर्न सम ऑफेंडिंग हैंड. तो उसमें अच्छे खासे, जैसे मान लो उसको जिस पे भी उसे गुस्सा आ रहा है, उसके हाथ को बुरी तरीके से स्क्रैच कर दिया. और अगर कोई डॉग उसे परेशान कर रहा होता है तो शी विल बाइट द डॉग, एंड वो डॉग चिल्लाता हुआ रूम से बाहर चला जाता था. सो नाउ हियर द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग कि तो जब उसे गुस्सा आता था, व्हाट शी यूज्ड टू डू. शी यूज्ड टू ईदर यूज हर क्लॉज और बाइट. Poor Tippity. Her end was tragic in the extreme. We hope it was also painless. अब now the author here is talking about Tippity's end. End मतलब उसकी लाइफ का लास्ट पार्ट. उसका जो एंड था, इट वॉज वेरी ट्रैजिक, मतलब बहुत पेनफुल था. वी होप इट वॉज ऑल्सो पेनलेस. अब द ऑथर इज होपिंग कि वो बहुत ट्रैजिकली मरी थी एंड इट वॉज पेनलेस. दिस इज वॉट द ऑथर होप्स. शी हैड बीन टाइड अप जस्ट बिफोर द डिनर. उसको डिनर के जस्ट पहले उसको टाई कर दिया था ताकि वो परेशान ना करे. बट समहाउ द एंड ऑफ द चेन हैड गॉट अनफैस्टेंड. लेकिन कुछ हुआ और जो लास्ट चेन थी जहां से उसे बांधा था वो खुल गई. एंड got unfastened from the leg of the chair. और जिस चेयर की लेग से उसको बांधा था वो वहां से खुल गई. unfastened मतलब होता है खुल जाना वहां से. I heard her hopping about on the boards of the veranda. मैंने उसको सुना कि जैसे वो वहां से भागी तो where did she go? On the boards of the veranda. तो जैसे अगर veranda है, ये उसकी रेलिंग है, तो वो वहां पे जंप कर रही थी and dragging her chain behind her. और उस पे तो चेन बंधी हुई थी तो वो अपनी चेन को ड्रैग करते हुए लेके जा रही थी. I went out to bring her back. और मैं तुरंत गया उसको लेके आने के लिए. But in that instant something flashed past me. लेकिन उतनी देर में एकदम से कोई मेरे आगे से निकल गया. What was that? There was a tiny squeal and a fox had poor Tippity in its relentless jaws. So जैसे ही ऑथर लेने के लिए उसे बालकनी तक गया, वरांडा तक गया, तब तक a fox jumped and there was a squeal, मतलब एक चीखने की आवाज थी, which was of course Tippity's, and the fox had poor Tippity in its relentless jaws. So उसने अपने मुंह से टिपिटी को उस पर झपट्टा मार के उसको मतलब ले लिया था. रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? नॉट शोइंग एनी मर्सी, मतलब एकदम रूडली, विदाउट शोइंग एनी मर्सी, उस पर बिना दया दिखाए उसने उसको अपने जॉज में पकड़ लिया था. हर डेथ वॉज एवेंज्ड. इसका मतलब है उसकी जो डेथ थी उसका बदला लिया गया था. अब हाउ, दैट इज अनदर स्टोरी. नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ अ स्टोरी
This was an extract from Companions, Feathered, Furred and Scaled, written by Charles H. Donald. So here the author started telling about this flying squirrel, which is beautiful, and how naughty it is, how mischievous, everything about it. But at the end we got to know that it was killed by a fox. And of course, you know, it was a painful end. But here the actual story doesn't end, because this is just an extract from the Companions, Feathered, Furred and Scaled. And that is it. I hope you have understood the chapter well and you enjoyed it, learning about our little Tippity. Not little, but yes, learning about our mischievous Tippity. If in case you have any doubt, though line by line explanation has already been given, आपको पूरी glossary दिखा दी गई है. In case you have got any doubt, you can comment me in the comment section. In our next video, we are going to start with the summary and the question answers which are behind the chapter. Okay, I'll see you very soon. In case you are not able to find our videos or you have any issue with the playlist, remember you can always go and visit our website, which is magnetbrains.com. Here just go there, you will have a home page जहाँ पे आपके पास कोर्स का ऑप्शन होगा. वहाँ पे आप अपना कोर्स सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, टॉपिक सिलेक्ट करो and the video will flash. Thank you so much guys. I'll see you soon. Bye bye.